Good morning, students. Today I am going to explain you Chapter 20, the United Nations Organization, second part. Yesterday I have explained you regarding the United Nations principles, objectives and the symbols of the United Nations. Today I am going to explain you the organs of the United Nations. There are 5 main organs of the United Nations. Number 1, the General Assembly. Second, the Security Council. Third, the Economic and Social Council. Fourth, International Court of Justice. And last is the Secretariat. These are the main 5 organs of the United Nations. Again, you will pay full attention about it. How many organs are there? 5 organs. Number 1, General Assembly, Security Council, the Economic and Social Council, the International Court of Justice, and the Secretariat. These are the 5 main organs of the United Nations. With the help of these organs, the United Nations perform its work. Besides this, there are some special agencies which also help in the work of the United Nations. So let us know about the General Assembly. It is the largest body of the United Nations. It is composed of all member state of the United Nations. United Nations में जो भी member state है, जो भी उसमें participate करते हैं, वे सारे General Assembly के member भी माने जाते हैं. It is the main policy making body. इसका main काम है policy बनाना. It is called the policy making body, discussing budgetary matters and peacekeeping efforts of the United Nations. If United Nations का main aim तो peace making ही है, तो इसके बारे में ये सारा decision General Assembly लेती है. General Assembly के जितने भी member countries हैं, सबको एक वोट देने का अधिकार है. All members, each member country has one vote. Okay. Now the second most important organ is the Security Council. Security Council is the most responsible for international peace and security. इसका मेन काम है विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना. इसी एम से यूएनओ की स्थापना की गई थी और यूएनओ में ये काम को देखने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी दी गई है. सिक्योरिटी काउंसिल सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन नेशंस. अगर दो राष्ट्रों के बीच में उसके जो मेंबर कंट्रीज हैं, किसी के बीच में अगर कोई आपसी मनमुटाव या झगड़ा होता है तो उसका समाधान सिक्योरिटी काउंसिल ही करती है. देयर आर टोटल 15 मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल. टोटल 15 मेंबर्स हैं उसमें, लेकिन 5 जो उसके मेंबर्स हैं वो उनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. एंड दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल यूनाइटेड किंगडम मीन्स इंग्लैंड, चाइना, फ्रांस, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. ये 5 इसके परमानेंट मेंबर्स हैं. दे आर हैविंग पावर ऑफ वीटो. इन लोग को वीटो का अधिकार है और इन लोग का टर्म है 5 years. दे आर नॉट 5 years, दे आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. और ये वीटो का अधिकार इन लोग को मिलने की वजह से इनका पावर बहुत ज़्यादा है. What do you know about veto? I am explaining you regarding the veto power. It means that if a single member disagrees with a decision, the decision cannot be made effective. मान लो किसी 2 कंट्री के बीच में लड़ाई हो रही है या सपोज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, तो अगर सभी कंट्रीज इंडिया के फेवर में बोल रहे हैं और इसमें से कोई एक कंट्री जो 5 परमानेंट मेंबर है इसमें से कोई एक वीटो का यूज कर लेगा तो वो इफेक्टिव नहीं होगा. ओके. सो वीटो इज द मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी गिवन टू द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन. नाउ द थर्ड इज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. It has also 54 members. It helps people all over the world to improve their standard of living. इसका मेन काम है कि आपस में जो भी मेंबर कंट्रीज है उसमें कोऑर्डिनेट करना, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना हर कंट्रीज का. नाउ द नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. This organ of the United Nations settle legal dispute that arise amongst nations. अगर राष्ट्रों के बीच में कोई कानूनी लड़ाई झगड़ा होता है तो उसका समाधान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करती है. इट इज ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड कोर्ट.
और ये एक तरह से कोर्ट है, जैसे आप इंडिया में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का नाम सुने होंगे, सेम वे द कोर्ट इज वर्किंग इन द यूनाइटेड नेशन इज नोन एज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड हेग में है। नाउ द लास्ट इज द सेक्रेटारिएट। द सेक्रेटारिएट कैरिड आउट द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। उसके रोज के कामों की एक्टिविटीज को का हिसाब सेक्रेटारिएट रखती है। दिस बॉडी इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के जो हेड हैं, जिसे हम सेक्रेटरी जनरल के नाम से जानते हैं, ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ द सेक्रेटारिएट, who is the most powerful official and act as the leader and spokesperson for the entire unit. यूनाइटेड नेशन में के पूरे यूनाइटेड नेशन के ये हेड माने जाते हैं सेक्रेटरी जनरल। इन द यूनाइटेड नेशन देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेज इन विच इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, चाइनीज एंड अरबिक। These are the 6 languages which are used in the United Nations. Okay, student, that is all for today. Thank you.